Hello students, welcome to MDC Learning. Today I'm going to teach you the subject Financial Accounting and the topic name is Underwriting of Shares and Debentures. Students, this is my first lecture of your semester 6. Okay, now let's start doing it. What is the meaning of underwriting? See, you have learned something called underwriting in your SP in your 12th standard. What do you mean by underwriting? The simple definition of underwriting is what? Underwriting means an agreement with or without condition to subscribe to the security of a body corporate when the existing shareholders of such body corporate or the public do not subscribe to the security offered to them. Now, see what is the meaning? Underwriting mean an agreement. So it's an agreement between two people with or without condition. So you are keeping some condition or you may not keep some condition. What? To subscribe to the security body of a corporate. Corporate means we are talking here of a company. To subscribe to the shares or the debentures of a company when the existing shareholder जो already shareholders है वो और public do not subscribe to the share offer to them. You know how the public limited company gather the money from the public? They issue the shares. The issues are subscribed by the public. If it is subscribed by the public, then the company is able to run it. And you very well know that as per the Companies Act, if if the issue is not subscribed, then what will happen? The company will have to give back the money, and then the company will have to shut it down. सी नॉर्मली आपने ये एसपी में पढ़ा था कि जब भी कंपनी इक्विटी शेयर के लिए मार्केट में आती है तो उन लोगों को पब्लिक से पैसा डिमांड करना पड़ता है और अगर सब्सक्रिप्शन प्रॉपर्ली हो जाता है तो कंपनी कैन गो अहेड एंड डू द बिजनेस, अदरवाइज द बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्टेड. नाउ यहाँ पे आप बोलोगे मैं सब्सक्रिप्शन तो हो ही जाता है ना मिस. ऐसा नहीं होता है बच्चों. बहुत सी बार कैसे होता है नई कंपनी आती है जिसको मार्केट में कोई पहचानता ही नहीं है, लोगों को उस कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो यू विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी. आज की तारीख में अगर रिलायंस इश्यू लेके आता है हर बंदा उसको बाय करने वाले आएगा ना. अगर मैं इश्यू लेके आऊंगी आप उसको बाय करोगे, आप बोलोगे यार कौन बंदा है ये सडनली बिजनेस में आया है, ये बिजनेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. वाई? बिकॉज अगर कंपनी इज गोइंग इन द लॉसेस माई मनी विल ऑल्सो बी वेस्टेड आउट. दैट्स वाई. तो यहाँ पे देर आर द ग्रुप of people. It can be a bankers, it can be a there are brokers who take and guarantee. वो लोग आपको क्या बोलते हैं कि अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका शेयर हम ले लेंगे. सो हमारे पास क्या हो जाती है कि गारंटी हो जाती है कि मेरा सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब होगा ही होगा. दैट इज अ रीजन कि हम लोग इसको अंडरराइटिंग करते. अगर मैंने अंडरराइटिंग नहीं किया तो आई विल बी इन अ ट्रबल. नाउ underwriting commission. See, now nobody is going to give me the underwriter in free of cost, so they are going to charge something. So what is the underwriting? Meaning commission payable to the underwriters on writing. See, when somebody is taking a guarantee of it, so he is going to charge you something. So for that we pay them commission. Underwriting commission is governed by the Companies Act of 2013 under section 46 of Companies Act. Now see बच्चों, इस बार ये मैं ज़्यादा इसके ऊपर concentrate कर रही हूँ. The reason is आजकल आपको पता है कि you are having this in the आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आ सकता है. वी डोंट नो इट. इस बार कोविड को लेके व्हाट विल बी द सिचुएशन, सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग थोड़ा डीपली प्रैक्टिकल कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर? सी यू हैव टू टाइप ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. डिबेंचर्स भी है, बट नॉर्मली शेयर्स के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मैं बहुत कंसर्न हूँ विद इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर.
अमाउंट डिवॉल्विंग ऑन अंडरराइटर्स, यानी कि जितना भी शेयर्स अंडरराइट करने के बाद उनको जितना खरीदना पड़ेगा उसके ऊपर वो कितना कमीशन चार्ज करेंगे, और अगर पब्लिक ने भी सब्सक्राइब किया तो भी उनको कमीशन मिलेगा. आर यू गेटिंग मी? क्या हो रहा है? So how much the commission underwriter is going to get it? For equity share, he gets 2.5%. So this is a percentage which has been decided by SEBI. So who is SEBI? Security Exchange Board of India. इसको भी याद रखो. हो सकता है ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में आ जाए. सेबी का फुल फॉर्म क्या है? हम कुछ भी दे सकते हैं. तो सेबी का फुल फॉर्म है Security Exchange Board of India. Are you getting it? So according to them, if the equity shares are underwrite, then whatever share he is purchasing, he'll get 25 and amount payable. यानी कि उसने जितना अंडरराइट करने के लिए बोला होगा उस पर हमें 2.5% देना ही है. ओके. उसके बाद प्रेफरेंस शेयर के अंदर इश्यू अप टू 5 लाख. अगर 5 लाख तक का हम इश्यू लेके आ रहे हैं तो 2.5 लाख है, 2.5% है. और अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसको 1.5%, और जितना शेयर वो खरीदेगा उसके ऊपर उसको 2.5% मिलेगा. इश्यू एग्जिस्टिंग 5 लाख, लेकिन 5 लाख से ज्यादा का अगर हमारा इश्यू होगा तो ही विल बी गेटिंग ओनली 2% कमीशन. और अगर पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया होगा उसके ऊपर उसको 1% मिलेगा. और जितना उसने टेकअप किया है, मतलब जितना पब्लिक ने नहीं लिया और इस बंदे को लेना पड़ा है, उसके ऊपर उसको 2% कमीशन मिलेगा. तो ये कमीशन रेट कैन कम इन द ऑब्जेक्टिव टाइप. सेकेंड टीम नॉर्मली आपको अभी एग्जामिनेशन एंड ऑल में ज्यादातर टीवाई लेवल पे देखा गया तो वो इक्विटी शेयर के बारे में ही कहते हैं. तो इक्विटी शेयर में याद रखिएगा इट इज 2.5%. आपको अगर नीचे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बोला होगा कि कमीशन शो द हाउ मच कमीशन इज पेएबल, तो अगर नहीं बोला गया है तो 2.5% लेना है. लेकिन अगर मैंने एग्रीमेंट में बोला है कि भाई मैं आपको 4% दूंगी तो वहां पे 4% आएगा. Actually, as per the rule, it is 2.5%. Okay. Comparison. See, there are underwriters or brokers. Broker के बारे में आपको पता है ना? Who is a broker? He is a middleman who help you to sell your product. Am I correct? And who is an underwriter? Again, I'm telling you. अंडरराइटर आपको गारंटी देता है, आपको अश्योरेंस देता है कि अगर मार्केट में आपका शेयर नहीं खरीदा गया तो मैं खरीदूंगा. ये अश्योरेंस आपको अंडरराइटर देखता है. ब्रोकर क्या है? ब्रोकर खाली बोलता है कि भाई मैं आपको कस्टमर ला के दूंगा, आप अपना प्रोडक्ट बेच देना. See, underwriter is liable to take up the security not prescribed by the public. मैंने अभी क्या बोला? उसकी लाइबिलिटी है. जितना भी शेयर्स अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया है, he is liable to take up. Are you getting me? He will have to invest money in my business. If a broker fails to find the subscription, he is not liable to take up the security. ब्रोकर क्या है? सिर्फ आपको कस्टमर, he'll bring the customers to your doorstep and then he'll arrange a meeting for you. If it is purchase, okay. If it is not purchase, he will not have to buy it. No, not at all. He will never buy it. He underwriter gets a commission even if it is oversubscribed. You know, there are oversubscribed matlab I have come with the issue of 1 lakh shares, but I received the application for 2 lakh of shares. That means my subscription is oversubscribed. इसका मतलब ये हो गया कि अभी अंडरराइटर्स को मेरे से शेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं है ये मुझे पता है, बट देन ऑल्सो वी विल गिव द अंडरराइटर अ कमीशन. व्हाई? उसने अश्योरेंस दिया था, उस अश्योरेंस के बदले में हमें उसे कमीशन देना पड़ेगा. If a broker fails to find the subscriber, he does not get brokerage. See, brokerage का कैसे होता है कि अगर if you bring the customer, अगर if he purchases then only he gets the commission. If the person does not purchases, he will not get the commission. He give the guarantee to the issuer to the of a security. यहाँ पे वो guarantee दे रहा है.
कि भाई तू टेंशन मत ले, तू बिजनेस करना चालू कर दे, अगर पब्लिक ने तेरा शेयर्स नहीं लिया तो मैं बैठा हूँ, आई विल बाय योर शेयर्स, एम आई करेक्ट? या ही जस्ट गिव द सर्विस टू फाइंड द सब्सक्राइबर टू द इश्यू, आर यू गेटिंग इट? सो ये दोनों के बीच में ये है कंपैरिजन है। नाउ आपको पेपर में सी, इन अकाउंट्स वी आर डीलिंग विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट। सो अब जब आपको प्रैक्टिकल पार्ट करना है तो आपका ये प्रोफॉर्मा है, ये प्रोफॉर्मा मेहरबानी करके बाय हार्ट कर देना। सी पहला वाला है ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी, नाउ सी if the issue is very big, the issues are in crores and all that, so you will have more than one underwriters। इसलिए देखो यहाँ पे मैंने 3 अंडरराइटर लिया है। अंडरराइटर ए, एक्चुअली घड़ी घड़ी मेरा चेंज होते जा रहा है आज, पता नहीं ये, ओके वन मिनट, हाँ बच्चों। या सो दिस इज अ प्रोफॉर्मा। ग्रॉस लायबिलिटी मतलब सी ना, ए बी और सी। ए बोलेगा यार आई कैन ओनली बाय, अब अगर आपका 1 करोड़ का है तो मैं आपको 30 lakhs का अंडरराइटर देता हूँ। बी बोलेगा ओके मैं आपको 50 का देता हूँ। सी बोलेगा 20 का लेता हूँ। सो देर विल बी सम परसेंटेज विच दिस विल बी डिवाइडेड, और ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे इट विल बिकम 100%। देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन मीन्स ए बी सी इन सबका ऑफिस होने वाला है, उनके थ्रू द पीपल आर गोइंग टू बाय इट। सो सपोज फॉर एग्जांपल देखो, इफ मेरे थ्रू वो कस्टमर ने आपकी कंपनी में शेयर बाय किया तो मेरा स्टैंप लगा होगा कि ए के थ्रू ये कस्टमर आया है, बी के थ्रू आया होगा तो उस पर बी का मार्क लगा होगा, सी के थ्रू आया है तो सी का। और कभी कभार क्या होता है कि ओके ये तीनों के थ्रू नहीं आया, पब्लिक ने डायरेक्टली भी शेयर्स खरीद लिया। सी देयर आर मेनी पीपल ऑन द मार्केट हु बाइज द शेयर्स, so they have not come to some people, so that is called as unmarked shares। मार्क मतलब इन लोगों का स्टैंप होगा उसके ऊपर, अनमार्क मतलब उसपे किसी का भी स्टैंप नहीं होगा, वो कस्टमर डायरेक्टली मार्केट में से आया होगा। आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज द मीनिंग। सो आपका ग्रॉस लायबिलिटी मतलब इतना आपने इश्यू किया, आपके थ्रू इतने लोगों ने शेयर्स खरीदा, फिर बैलेंस बचा। फिर अनमार्क, अब अनमार्क एप्लीकेशन का हमें क्या करना है? हाँ, अनमार्क का एप्लीकेशन का ये होता है कि इनको इनके रेशियो, जिस रेशियो में इन लोगों ने शेयर लिया उन रेशियो में हम उनके अमाउंट में डिवाइड करते हैं, फिर वो बैलेंस बचता है। फिर फर्म अंडरटेकिंग। फर्म अंडरटेकिंग मतलब हर एक कंपनी बोलता है कि मैं इतना शेयर्स आपके कंपनी में परचेस करूंगा, ये पहले से ही डिसाइडेड होता है, ओके इट इज डिसाइडेड बिफोर हैंडेड। तो उनका वो अमाउंट आपको प्रॉब्लम में दिया गया होगा कि फर्म अंडरटेकिंग इज दिस मच, तो आपको वो करना है। फिर जो बच गया, देखो ये मार्क पब्लिक ने लिया है, अनमार्क पब्लिक ने लिया, ये मैंने ले लिया, फिर जो बच गया है वो मुझे परचेज करना पड़ेगा। ये फिगर 0 आ सकता है, ये फिगर नेगेटिव आ सकता है, ये फिगर कुछ भी आ सकता है, यह हम प्रॉब्लम करते समय देखेंगे। अगर एक्चुअल होगा तो ये सिर्फ इतना आएगा, फिर हम फर्म अंडरटेकिंग ऐड करेंगे तो मेरा टोटल लायबिलिटी क्या होगा, जितना बच गया वो मैंने खरीदा, फर्म अंडरटेकिंग, और मेरा टोटल लायबिलिटी इतना आएगा। By this way we are going to solve our problem. Are you getting? That is in my next lecture I'm going to solve the problem based on this. This is a very easy chapter बच्चों। Again अगर कोविड खत्म हो गया है और हमारा रेगुलर एग्जाम्स होता है तो दिस चैप्टर प्रॉब्लम विल कम फॉर 20 marks in the examination. Concentrate it, we will surely get 20 out of 20. Okay, so this is all for today. Thank you. Enjoy learning with us. Have a good day.